Good morning, friends. Can you guys hear me? Please raise your hand if you can hear me properly. Mr. Sumit, Mr. Abdul, Mr. Suresh, can you hear me? Please raise your hand so that I can know. Okay. Okay, done. So it's time to start this session of today. Friends, myself, Gautam Chaturvedi, and I have worked in my career with uh, service exporting companies, local search engines, and companies which are providing export import consultancies. Friends, today's our topic of discussion is why export import is the best business of next decade. It's a very interesting topic. You will get to know very interesting and useful information today. So stay connected with us in this complete webinar to know many things which you want to know. Okay, so let's start. So, friend, first of all, let us know about the medium which has connected us today, which is Global Federation of Entrepreneurs, global platform for knowledge, networking, trade, and sports. Global Federation of Entrepreneurs is basically a fastest growing organization in India, and it is the biggest business network for business training and support. It has also got a certificate of from Indian Glory Book of Records as the fastest growing global chamber of India. It has presence in more than 50 plus cities and 20 plus countries, and it has trained more than 10,000 business owners till today. It has been awarded as the best exim training organization from last 4 years. It is a network of farmers, traders, suppliers, CHAs, and freight forwarders. Impexpert is conducting more than 25 business events every month, like the event in which we are connected right now. We are conducting more than 25 events every month, and it has more than 100 plus industry experts connected with the Impexpert so that they can help the people who are getting connected to Impexperts. So friends, here you can see the certificate on your screen from Indian Glory Book of Records, an exclusive honor certificate for Mr. Vaibhav Sharma, founder and chairman of GFE, India's fastest growing organization, and the category in which the certificate has been received is fastest growing global chamber of India. So you can see the certificate on your screen. Now friends, what we are going to discuss today. So first of all, today's date is 21st February 2021. It has been also known as Mother Language Day, मातृभाषा दिवस. सो दोस्तों, मातृभाषा हमारी है हिंदी, और जितने भी लोग कनेक्टेड है, मोस्ट पीपल आर कंफर्टेबल इन हिंदी. सो जो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा, दैट विल बी इन हिंदी लैंग्वेज. सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट इन नेक्स्ट डिकेड विद अपॉर्चुनिटीज. किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बेसिकली एक सेक्टर है, वो इंपॉर्टेंट है अगले डेकेड के लिए, अगर आप इसमें जुड़ना चाहो तो, और अगर आप जुड़ते हो तो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है. सो सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. अब दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये आता है कि कैन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बी शट डाउन. आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, गैदर हुए हैं. मैं अपना टाइम प्रोवाइड करूं, आप लोग अपना टाइम प्रोवाइड करें, और पता चले कि 20 दिन या 1 महीने बाद ये तो बंद हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या 6 महीने बाद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो फिर हमारा टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब, हमारे डिस्कशन का क्या मतलब है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जान लेते क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो सकता है. सो दोस्तों, बहुत ही रिसर्च करने के बाद हमें ये 3 कंडीशन मिली है कि ये 3 कंडीशन अगर होती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो सकता है. पहली कंडीशन है कि यस, इट कैन बी शट डाउन if each country have all the required natural and technological resources. So सारी अगर कंट्रीज के पास अपनी जरूरत की सारी चीजें हो, सारे नेचुरल रिसोर्सेस हो और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस हो, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो सकता है. दोस्तों, इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें हमारी जो एक पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, हमारा जो घर है, वो एक
गेंद जितनी आकार का है, उस गेंद जितनी आकार की पृथ्वी में भी 3 भाग में पानी है और 1 भाग में जमीन है। जिस 1 भाग में जमीन है उसमें भी 195 कंट्रीज है। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द नेचर ऑल्सो कि वो हर एक कंट्री में सारी चीजें दे पाए जरूरत की, क्योंकि आपके घर पे जैसे कि जो वार्डरोब होगा, पॉसिबल नहीं है आपके घर का सारा सामान आप उस एक वार्डरोब में ही रख पाओ। सो इसी तरीके से नेचर ने भी पूरी दुनिया में हर एक जगह एक बैलेंस बनाने के लिए अलग अलग चीजें दी हैं, ताकि एक दूसरे को सबकी जरूरत पड़ती रहे। और ये नेचर ने कंट्रीज नहीं बनाई, कंट्रीज तो हमने बनाई है। सो उस हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी जो अपने हिसाब में रिच इनफ है एग्रीकल्चर में, क्रूड ऑयल में, खनिज में, सारी चीजें एक ही कंट्री के पास है, सब पॉसिबल नहीं। अगला दोस्तों, शायद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो सकता है जो चीज हो तो, यस इफ द होल वर्ल्ड इज ऑन अ वॉर, अगर पूरी दुनिया में वॉर स्टार्ट हो जाए, पूरी दुनिया आपस में लड़े, तो शायद पॉसिबल है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाए। आप आज की 150 से 200 साल के पहले का इतिहास अगर देखो तो छोटे छोटे प्रदेश, छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे देश में आपस में लड़ाई झगड़ा युद्ध होता ही रहता था, क्योंकि तब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो रोटी कपड़ा और मकान जितनी बेसिक चीजों के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। सो फर्क नहीं पड़ता था अगर चाहे हमारे मान लो हमारे कितने ही दुश्मन हो, चल जाता था, क्योंकि हमारी जो बेसिक नेसेसिटी थी वो कंप्लीट हो जाती थी। आज के टाइम पे दोस्तों अगर किसी दो कंट्री को अपने बीच में अगर वॉर करनी भी है तो उन्हें 50 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि उनका जो ट्रेड रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा। उनके साथ साथ दोनों कंट्री के जितने भी मान लो सपोर्टिव कंट्रीज है उनमें भी आपस में ट्रेड में इश्यूज आएंगे, और हर एक कंट्री एक मकड़े की जाल की तरह आज के टाइम पे जुड़ी हुई है आपस में। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ वर्ल्ड वॉर इन करंट सिचुएशन। सो इस अगर मान लो वर्ल्ड वॉर हो जाती है तो शायद इसमें कोई इफेक्ट पड़ सकता है, नहीं तो नहीं पड़ेगा। दोस्तों जो थर्ड चीज आती है वो हमारे काबू में है। नेचुरल रिसोर्सेस हमारे काबू में नहीं है, वॉर्स हमारे काबू में नहीं है, यस, बट हमारी रिक्वायरमेंट हमारे काबू में है। सो अगर हम एंशियंट टाइम्स में चले जाए, हमारी जो प्राचीन हमारा जो काल था उसमें अगर हम चले जाए, उस तरह से हम अपनी लाइफ स्टाइल को सिंपल कर लें, तो शायद पॉसिबल है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिना रह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जो ये पाषाण युग था उस वक्त एक ही काम होता था कि कपड़े वपड़े का भी ठिकाना नहीं होता था, और जानवर को मारो, लकड़ियां इकट्ठी करो, दो पत्थर को टकराओ, आग जलाओ, उस पे उस जानवर को पकाओ और खा लो। इस तरह से लाइफ चलती थी। सो अगर इस युग में हम जाते हैं तो शायद हमें किसी और कंट्री से कोई चीज मंगाने की या किसी को कुछ बेचने की जरूरत ना पड़े। और दोस्तों इतिहास गवाह रहा है कि हमारा जो ह्यूमन ग्रोथ है वो कभी रुका नहीं है, वो हमेशा ग्रो ही, हम हमेशा आगे की तरफ बढ़े हैं। ग्रो होने के बाद हम वापस कभी पीछे की तरफ नहीं आए हैं। माना जाता है हम पहले गोरिल्ला थे या चिंपांजी थे या बंदर थे, और उससे हम धीरे धीरे चेंज होते होते आप ह्यूमन ग्रोथ देख सकते हो कि किस हिसाब से अलग अलग स्टेप में ह्यूमन चेंज होते ह्यूमन है, वो लास्ट में आप देख सकते हो जो कि हम लोग हैं। आज भी हम इसी पोजीशन में। सो ये मॉडर्न टाइम है, पॉसिबल नहीं है कि हम अपने एंशिएंट टाइम में वापस जा पाए। एंड इन 21st century if you want to grow, then it is very important to learn, unlearn and relearn as fast as you can. So दोस्तों आपके पास, आपके आसपास में इंफॉर्मेशन का अंबार है, लेकिन आपको उसमें से चूज करना है कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की है, उसे एनालाइज करना है, उस पर आगे बढ़ना है। जो इंफॉर्मेशन सुनी अच्छी तो है लेकिन आप उस पर वर्कआउट नहीं कर सकते तो उसे डिलीट करना है और नई चीजें सीखते रहना है, तभी हम इस सेंचुरी में आगे बढ़ सकते हैं। विदाउट नॉलेज वी कैन नॉट ग्रो इन दिस सेंचुरी। सो मैं आगे आज आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, आप चूज करिए कि आपके काम की इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है। शायद सारी इंफॉर्मेशन आपके काम की ना हो, लेकिन इतना मेरा प्रॉमिस है कि कुछ ना कुछ हर किसी के लिए काम का होगा। दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड, सो बेसिकली ये कहां से आया, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में अगर हम शॉर्ट में जाने, सो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड हैज अ रिच हिस्ट्री स्टार्टिंग विद बार्टर सिस्टम। सबसे पहले ये एज अ बार्टर सिस्टम शुरू हुआ था,
जब राजाओं का राज होता था, उस वक्त बेसिकली अलग अलग जो मुद्राएं तो चलती थी, लेकिन अलग अलग कंट्री में अलग अलग मुद्राएं होती थी। तो उस टाइम पे किसी के पास अगर गेहूं ज्यादा है, जैसे कि मान लो पहले के टाइम पे पोर्टुगीज के पास मसाले ज्यादा होते थे, इंडिया के पास रेशम ज्यादा होता था, तो रेशम एक्सपोर्ट होता था और सिल्क एक्सपोर्ट होता था और मसाले हम इंपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से जो भी चीज हमारे पास जरूरत से ज्यादा है वो हम एक्सपोर्ट करते थे, और जो भी चीज जरूरत से कम है वो हम इंपोर्ट करते थे। उसके बाद बार्टर सिस्टम रिप्लेस हुआ 16वीं से 17वीं सदी में विद मर्केंटाइलिज्म। सो बाद में मुद्राएं यूज होने लगी, सोने और चांदी की मुद्राएं दी जाने लगी जो भी चीज इंपोर्ट की जाती थी उनके बदले में। देन दोस्तों 18वीं सदी में जो शिफ्ट आया वो आया लिबरलाइज्म की तरफ, उदारीकरण की तरफ। जो भी गवर्नमेंट थे उन्होंने टैक्सेस पे वेवर देना शुरू किया। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, किसी और कंट्री से चीजें मंगा रहे हो, पहले टैक्स बहुत ज्यादा होता था, उससे टैक्स में वेवर मिलने लगा। देन दोस्तों 19 सेंचुरी में प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट डिफरेंट चीजें स्टेब्लिश की जिससे कि लोग इंटरनेशनल ट्रेड के साथ जुड़ पाए और कंट्रीज इजीली ट्रेड कर पाए। देन ब्रिटेन इंट्रोड्यूसेस अ फ्री ट्रेड इन द मिड 19th सेंचुरी। सो उसके बाद बेसिकली उस टाइम तक 19th सेंचुरी तक ब्रिटेन ने बेसिकली बहुत सी कंट्रीज को गुलाम बनाया हुआ था। दोस्तों 195 टोटल कंट्रीज है, जिसमें से ओनली नेपाल एंड इथोपिया नाम की दो कंट्रीज है जो कि कभी गुलाम नहीं बनी है। और उनके बारे में भी कहा जाता है कि इथोपिया को भी 5 साल के लिए इटली ने गुलाम बनाया था, और नेपाल के लिए भी कहा जाता है कि वो गुलाम नहीं बना, लेकिन इंडिया एंड चाइना का हमेशा उस पर इन्फ्लुएंस रहता है। सो एकदम फ्री तो कोई कंट्री आज तक रहा नहीं है। सो हर एक कंट्री गुलाम कभी ना कभी बन चुका है। सो ब्रिटेन ने बहुत से कंट्रीज पे अपना शासन चलाया हुआ था, और उसने फ्री करना स्टार्ट किया इन मिड ऑफ 19th सेंचुरी। तो उसके बाद डॉलर को अपनी एक पहचान मिली, डॉलर में डील होने लगी जो कि यूनिफॉर्म, जिसने इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ही आसान बना दिया। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। ये एक बेस्ट बिजनेस क्यों है अगर आप करना चाहते हो तो। सो दोस्तों पहला जो रीजन आता है ये बेस्ट बिजनेस क्यों है आज के, क्योंकि वर्ल्ड इज मोर ओपन देन इवन बिफोर। दुनिया आज के टाइम पे बहुत ओपन हो चुकी है। पहले के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती थी लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता था। और आज का टाइम ऐसा है कि छोटी सी चीज भी, मान लो मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, एक पाकिस्तान में एक अननोन शहर की किसी अननोन सड़क पे कोई अननोन लड़की खड़ी होकर एक वीडियो बनाती है, ये हम है, ये हमारी गाड़ी है और ये हमारी पारी हो रही है। वो वीडियो 10 से 15 दिन में इतना वायरल हो जाता है, करोड़ों लोग उस वीडियो को देख लेते हैं, उस पर अलग अलग वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सो इंफॉर्मेशन आज के टाइम पे बहुत ही फास्ट स्प्रेड होती है। सो वर्ल्ड बहुत ही ओपन है आज के टाइम पे, बहुत छोटा बना दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया को। डिफरेंट क्लाइमेट से दुनिया में अलग अलग क्लाइमेट है, जैसे कि मान लो ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, सो जो भी एग्रीकल्चरली रिच कंट्री है जैसे वो ट्रॉपिकल रीजन में आती है, जैसे इंडिया है और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जो भी एग्रीकल्चर में रिच है वो सारे ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। इसी तरीके से गल्फ कंट्रीज है तो वहां पे क्रूड ऑयल ज्यादा होता है, कहीं खनिज ज्यादा होता है। सो अलग अलग क्लाइमेट से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी है। सो अलग अलग रिसोर्सेस है अलग अलग कंट्रीज के पास, हर एक कंट्री के पास सारे रिसोर्स नहीं है। और डिफरेंट डेवलपमेंट लेवल्स हैं, कोई कंट्री पहले आजाद हुआ, कोई कंट्री बाद में आजाद हुआ। इंडिया पहले बहुत रिच था, देन बाद में इंडिया पे शासन रहा ब्रिटिशर्स का और अलग अलग शासकों का। तो 1947 के बाद हम आजाद हुए, फिर हमने अपना विकास शुरू किया। इसी तरीके यूएसए हमसे पहले आजाद हो चुका था तो वो ज्यादा डेवलप है। तो जो ज्यादा पहले आजाद हो गया वो ज्यादा डेवलप है, कोई लेट आजाद हुआ लेकिन उसने ग्रोथ अपनी जल्दी कर ली। सो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट लेवल्स है अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग कंट्रीज के। सो इसीलिए ये बेस्ट बिजनेस है क्योंकि हर एक कंट्री को आपस में एक दूसरे की जरूरत तो पड़ती ही है। अब दोस्तों आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, हाउ टू ग्रो विथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन नेक्स्ट डेकेड। दोस्तों एक्सपोर्ट या इंपोर्ट आप में से कोई भी सुनते हैं
बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको पता नहीं होता कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, वो जानना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो जानते हैं उन पर इतना जानते हैं कि एक्सपोर्ट यानी कि एक कंटेनर लिया और उसमें माल भरा और दूसरी कंट्री में भेज दिया और उसके बदले में पेमेंट ले लिया। इंपोर्ट यानी कि दूसरी कंट्री से कंटेनर मंगा लिया और इंडिया में उसे बेच दिया, वो इंपोर्ट हो गया। बट दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक इतना बड़ा समंदर है, एक इतना बड़ा बिजनेस है। मेरा पिछला जो मैंने वेबिनार लिया था उसमें मैंने बताया था कि 324 बिलियन का तो इंडिया का एक्सपोर्ट है, 350 बिलियन के आसपास का इंपोर्ट है। इतना बड़ा बिजनेस है। 1 बिलियन यानी कि 72,000 करोड़ रुपीस के आसपास होता है, अगर 1 बिलियन डॉलर को आप इंडियन रुपीस में कंपेयर करो तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप एक मेनली एक्सपोर्टर बनो, आप खुद कंटेनर लेके और आप एक्सपोर्ट करो, एक वही फील्ड है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे सेक्टर्स हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड कि जिनके साथ भी जुड़ के आप ग्रो कर सकते हो। सो हमने आपके लिए आज 2, 5, 10 नहीं, टोटल 21 आइडियाज निकाले हैं कि जिनके साथ आप जुड़ सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आइडिया के साथ, विच इज सोर्सिंग एजेंट। यू कैन बी ए एक्सपोर्ट इंपोर्ट सोर्सिंग एजेंट। दोस्तों, सोर्सिंग एजेंट का मतलब ये होता है जो सोर्सिंग प्रोवाइड करे। इंटरनेशनली बहुत सी कंपनी ऐसी रहती है जो कि इंडिया में डील करना चाहती है। इंडिया में उन्हें किसी ना किसी प्रोडक्ट की तलाश है, किसी चीज के बायर की तलाश है, किसी भी तरह की सर्विस की तलाश है। सो आप सोर्सिंग करा सकते हो, आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले सकते हो और आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या बायर के बारे में, सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो और फॉरेन क्लाइंट को वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। आप एज अ सोर्सिंग एजेंट रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन अपनी एक कंपनी की प्रोफाइल बना के, ताकि आपको बहुत सी आपको ऑनलाइन इंक्वायरीज मिले वहां से, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद इट। सो इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा स्कोप मिलेगा। अगर आप अपने टास्क की बात करो तो आपका टास्क यहाँ पे यही रहेगा कि आपको सर्विस प्रोवाइडर फाइंड करने हैं और फॉरेन कंपनी के साथ उसका एग्रीमेंट कराना है। और आपका जो डील रहेगा वो वन टाइम भी रह सकता है या कंपनी आपको रिपीटेडली सोर्सिंग करने के लिए बोल सकती है। सो आपको सप्लायर से मिलना है, प्रोडक्ट चेक करना है, बायर को रिपोर्ट देनी है कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है और आपकी जो सोर्सिंग है हम इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। सो द सोर्सिंग एजेंट यू कैन ग्रो इन दिस 21st सेंचुरी। और बहुत ही अच्छी फील्ड है ये। आप इसके बारे में, मैं दोस्तों हर एक आइडिया के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज दूंगा। आपको जो भी आइडिया इंटरेस्टिंग लगता है आप उसके बारे में और आगे रिसर्च करके नॉलेज गैदर करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा आइडिया आता है विच इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजेंट। सो यू कैन स्टार्ट विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजेंट। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन में मिडल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजेंट है, उसके लेफ्ट साइड है सप्लायर और राइट साइड है बायर। सो बेसिकली बायर कांटेक्ट करता है इंपोर्टर को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एजेंट को जो कि आप हो, ठीक है, और आप कांटेक्ट करते हो सप्लायर को। इसमें आपके पास एक चीज कंफर्म होनी चाहिए कि एक या मल्टीपल जितने प्रोडक्ट में आप डील करना चाहो उसके सप्लायर आपके पास फिक्स होने चाहिए। और आपको देन बाद में फॉरेन कंट्री के बायर से कांटेक्ट करना है, जो भी वो इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं आप उन्हें सप्लायर प्रोवाइड करिए। और या फिर डोमेस्टिकली अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उनको सप्लायर प्रोवाइड कर सकते हो चीजों के। सप्लायर से गुड्स जाएंगे डायरेक्टली बायर के पास और बायर से डायरेक्टली पेमेंट आएगा सप्लायर के पास। देन आपको जो सप्लायर है वो आपका कमीशन प्रोवाइड करेगा। सो कमीशन जो आपका रहेगा दैट कैन बी ऑन परसेंटेज या जो भी आप एग्रीमेंट साइन करते हो उस अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा। इसमें आपको एक चीज के लिए बड़ा ही केयरफुल रहना है कि जो भी आप डील करते हो वो एग्रीमेंट के ऊपर आपको करना है, कोई भी चीज के ट्रस्ट के ऊपर आपको नहीं करना है। सो आपका जो लॉन्ग इनफ कि आपने जो डील डिसाइड की उस अकॉर्डिंगली आपको आपका पेमेंट मिल जाए। सो यू कैन स्टार्ट विद दिस फील्ड ऑल्सो। इसे हम कह सकते हैं एक मैच मेकर या एक ब्रोकर। और इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन आपको बहुत ही अच्छा मेंटेन करना रहेगा ताकि रिपीटेडली आपको डील मिले। क्योंकि हर बार हर डील में आप नए मान लो सप्लायर ढूंढने जाओगे तो इट विल बी टफ फॉर यू। सो एक ही पर्सन से आपको अगेन एंड अगेन ऑर्डर मिले तो 4-5 कंपनी भी आपको मिल जाती है तो इजीली अपना बिजनेस इसमें रन कर सकते हो। अगले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विच इज डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग।
सो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के बारे में तो दोस्तों हम वेबिनार करते ही रहते हैं, बहुत से मल्टीपल डेफिनेशन अगर आप देखने जाओ तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मींस यू एक्सपोर्ट डायरेक्टली टू अ कस्टमर इंटरेस्टेड इन बाइंग योर प्रोडक्ट। डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एक बायर को जो कि इंटरेस्टेड है आपका प्रोडक्ट बाय करने में। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द मार्केट रिसर्च, फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन, शिपमेंट एंड फॉर कलेक्टिंग पेमेंट। सो मार्केट रिसर्च से लेके उस चीज के डिस्ट्रीब्यूशन तक, शिपमेंट तक, पेमेंट कलेक्शन तक, सारी कुछ चीजें आपके पास ही सीमित रहती हैं, आपको ही सारी चीजें करनी रहती हैं। इट इज मोस्ट रिस्की, मोस्ट लाइक वन ऑफ द टफ बट मोस्ट प्रॉफिट गिविंग बिजनेस। इंडिया और चाइना जैसे विकासशील देशों ने ऐसी ही डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग जैसे आइडियाज के कारण ही बहुत ही बड़ा फॉर्च्यून भी बनाया है बहुत ही शॉर्ट टाइम में, क्योंकि जितने बीच में एजेंट्स कम है, जितने बीच में मीडिएटर्स कम है, उतना ही प्रॉफिट भी ज्यादा है। जितना रिस्क उतना प्रॉफिट। सो अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए श्योर हो जाना है, उस प्रोडक्ट की सप्लाईज के लिए श्योर हो जाना है, देन बायर कैसे फाइंड करना है, उससे कम्युनिकेशन कैसे करना है, उसको क्लोज कैसे करना है, और शिपिंग एंड लॉजिस्टिक आपको कैसे करना है, ये कंप्लीट प्रोसेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों अगला पॉइंट जो है हमारा विच इज डायरेक्ट इंपोर्टिंग। import is always easy in compared to export, because export mein you need to sell something, in import you are buying something, you are paying the money buying something, so buying is always easy than selling. So दोस्तों अगर आप टॉप 10 इंपोर्ट अगर देखने जाए इंडिया के तो मेरी जेम्स एंड प्रेशियस मेटल्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मिनरल फ्यूल एंड ऑयल, optical, technical and medical equipment, organic, chemical, plastic, machinery including computers, animal और vegetable spare parts आप कर सकते हो। सो बेसिकली आपको इसमें प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप लोकल मार्केट के बारे में अवेयर हो। आप कोई भी चीज इंपोर्ट तभी करोगे, आप घर पे रखने के लिए उसे इंपोर्ट नहीं करोगे, आप इंपोर्ट तभी करोगे जब आपको पता है कि ये चीज को मंगा के मैं इस अमाउंट में बेच सकता हूँ। सो इसमें क्या ज्यादा श्योर रहते हो आप कि जो चीज मैं कर रहा हूं उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, कितने में बेचूंगा, तभी आप इंपोर्ट करिए। अगर आपके पास लोकल में डोमेस्टिक में कोई भी मार्केट है जहां वो चीज बेच सकते हो, सो यू कैन इजीली स्टार्ट विद इंपोर्टिंग आल्सो। और कल ही हमारा एक वेबिनार भी हुआ था जो कि स्पेशली इंपोर्ट के ऊपर ही था, तो वो भी देख सकते हो अगर आप इंपोर्ट में जाना चाहते हो। तो अगले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आइडिया है दोस्तों हमारा ऑनलाइन एक्सपोर्टिंग। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो इंटरनेशनल साइट्स, टिकटिंग, ट्रैवल, लाइफस्टाइल शॉपिंग, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, डील साइट्स, ऑनलाइन ग्रोसरी, पेनी ऑक्शन, B2C, लग्जरी शॉपिंग, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन क्लासिफाइड। दोस्तों ये जितनी भी वेबसाइट है ये सारी वेबसाइट ऐसी है कि कभी ना कभी ये डोमेस्टिक लेवल पे स्टार्ट हुई थी और आज के टाइम पे ये मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। सो ऑनलाइन एक्सपोर्ट भी आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी तरह की सर्विसेज आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, किसी भी तरह का प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप इंटरेस्टिंग कोई भी चीज इंपोर्ट कर सकते हो और देन बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके उसे सेल कर सकते हो। अगर आप हॉट प्लेटफॉर्म्स की बात करो इंडिया में, सो आज के टाइम पे अमेजोन, ईबे, एली एक्सप्रेस आर दी पोर्टल्स विच आर लार्जली यूज्ड एज अ ऑनलाइन एक्सपोर्टिंग टूल। और बेस्ट प्रोडक्ट अगर आप देखने जाओ तो फैशन प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, हैंडबैग्स, टॉयज आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो तो किस स्किल की रिक्वायरमेंट रहेगी? तो आपको नॉलेज होना चाहिए ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में, एसईओ के बारे में, कंटेंट के बारे में, कंटेंट क्या रखना है, हाउ टू मैनेज दी पेमेंट, पेमेंट्स आप कैसे मैनेज करोगे, सीआरएम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सो अगर आपको मान लो आईटी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज ले लीजिए, अपनी इन्वेंट्री के बारे में आप मैनेज कर लीजिए, पेमेंट के बारे में कर सकते हो उसके लिए, और आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों आज थोड़ा इलेक्शन का माहौल है हमारे ऑफिस के बाहर तो थोड़ा नॉइस आ सकता है, सो आई अपोलोजाइज इफ देयर आर एनी डिस्टर्बेंस। दोस्तों 6 जो हमारा पॉइंट आता है विच इज सेलिंग क्रिएटिव प्रोडक्ट्स ऑनलाइन।
आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो दो चीजें, उसमें से जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो ये एक ग्रीन ब्राउन कलर की स्टिक है। ये जो स्टिक है इस पे लिखा हुआ है प्लेन टेबल पेन। ये एक पेन है, आप इससे लिख सकते हो। इसके ऊपर एक और इंफॉर्मेशन लिखी हुई है हर एक पेन पे, टोमेटो, कोरिएंडर, चिली, मस्टर्ड, फेनग्रिक। सो बेसिकली टोमेटो, कोरिएंडर, चिली लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप टोमेटो वाली लाल लिखेगी, चिली वाली ग्रीन लिखेगी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इस पेन को आप जब तक यूज करना चाहो यूज करिए, जब आपने यूज कर लिया उसके बाद आप इसे जमीन में उगा दीजिए और इसके ऊपर एक बीज होता है, इसमें से प्लांट निकल जाएगा। तो टोमेटो वाली ऊपर से टोमेटो का प्लांट निकलेगा, कोरिएंडर वाली से कोरिएंडर का प्लांट निकलेगा। दोस्तों इसके जो मैन्युफैक्चरर है उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। इस पेन की 10 से 12 रुपए। अब दोस्तों 12 रुपए की पेन है, अगर इसका एक पैकेट आप, आज के टाइम पे लोगों को यूनिक चीजें बहुत चाहिए होती है। सो ये इस तरह के इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आप अगर ढूंढ सको तो ऑनलाइन आप किसी भी तरह के क्राफ्ट सेल कर सकते हो, या आप जैसे कि देख सकते हैं कोई भी कपड़े के ऊपर आप किसी भी तरह का वर्क, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी अगर आप कर सकते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो अपना ऑनलाइन बिजनेस। ये दोस्तों वैसे लोगों के लिए है जो कि घर से काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, कोई भी हाउस होल्ड विमेन है, या तो कोई भी बिजनेसमैन या जॉब कर रहे हैं जो कि 2-4 घंटे अलग से प्रोवाइड कर सकते हैं, घर से करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट फील्ड रहेगी। ये दोस्तों मास प्रोडक्शन के लिए नहीं है, कोई मशीनरी से ये चीज नहीं बनती, हैंडमेड चीजें होती है बहुत सी। सो इसमें आप धीरे धीरे भी स्टार्ट कर सकते हो। ज्यादातर जो चीजें क्राफ्ट ऑनलाइन सेल होती है इसमें वो है जूट मेड लैपटॉप बैग्स, हैंडमेड क्लोथ्स, वुड वर्क, सिरामिक एंड ग्लास ऑर्नामेंट्स। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो क्राफ्ट सेलिंग, सो दोस्तों दो रास्ते हैं। एक तो etsy.com से आप स्टार्ट कर सकते हो, etsy.com। मैं बहुत सी इंफॉर्मेशन से शेयर करने वाला हूँ आपके पास नोटपैड और पेन लेके अगर आप बैठे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं बहुत सी चीजें। etsy.com, इस पे जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हो और आप ऑनलाइन किसी भी तरह के क्राफ्ट सेल कर सकते हो। और आप चाहो तो अपनी खुद की भी ऑनलाइन स्टोर, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो और देन बाद में उस पर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले आइडिया की तरफ, विच इज ड्रॉप शिपिंग। दोस्तों ड्रॉप शिपिंग आपने नाम तो सुना होगा, बहुत से लोगों ने नाम सुना रहता है बट एग्जैक्टली क्लियर नहीं रहते इसके बारे में कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव आइडिया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो वो पिक्चर पूरा ड्रॉप शिपिंग एक्सप्लेन करती है। आप पहले अपनी नजर ले जाइए सेलर के ऊपर। जो सेलर है वो बैठ के लैपटॉप पे काम करता है और देन उसके लैपटॉप पे नजर ले जाइए योर ऑनलाइन शॉप, जो कि एक लाइन से जा रहा है कस्टमर की तरफ। सो सेलर क्या करता है, ऑनलाइन शॉप बनाता है जिसमें वो कपड़े या ज्वेलरी या जो भी उसे शो करना है वो शो करता है बायर तक, देन कस्टमर तक वो चीज पहुंचती है, कस्टमर वो चीज देखता है, उसे वो चीज अच्छी लगती है तो वो अपना कार्ड से पेमेंट भेजता है वापस कस्टमर की तरफ। तो वापस कस्टमर की तरफ आप आओगे तो आपको एक डेबिट कार्ड आता हुआ दिखेगा। तो उसने ऑनलाइन शॉप से अप्रोच किया कस्टमर को, कस्टमर ने अपने कार्ड से अप्रोच किया सेलर को और उसने पेमेंट कर दिया। सेलर के पास पेमेंट आ गया, सेलर ने क्या किया, वो पेमेंट लेके नीचे की तरफ आप आओगे तो उसने गिफ्ट बॉक्स में बंद किया, एक बॉक्स में बंद किया पेमेंट, और साथ में जो ऑर्डर है उसकी डिटेल लिख के भेज दी सप्लायर को। सप्लायर के पास वो बॉक्स है, उसने देखा उसमें से पेमेंट निकला, पेमेंट निकाल लिया, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो डाल दिया और उसको गिफ्ट रैप करके भेज दिया कस्टमर के पास, एंड कस्टमर इज हैप्पी। सो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है दोस्तों, अगर आप इन्वेंट्री मैनेज नहीं करना चाहते हो, आप प्रोडक्ट को टच भी नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप अपना ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो, सो यू कैन गो इन ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यू शुड फाइंड अ सप्लायर ऑन हुम यू कैन ट्रस्ट। अब मान लो सेलर ने तो सप्लायर को, लेकिन सप्लायर गुड्स कैसे डिलीवर कर रहा है वो जो, तो उसके लिए आपको जो सप्लायर है वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, तभी आप कस्टमर के साथ ऑनलाइन स्टोर को विजिट करेंगे।
इसके लिए दोस्तों जो आपको स्किल रिक्वायर्ड है विच इज कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, वर्डप्रेस, पेमेंट सिस्टम एक्सेट्रा। सो ये सारे स्किल अगर आपके पास है तो वेल इनफ, नहीं है तो आप कोई भी आईटी प्रोफेशनल हायर कर सकते हो और ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। मेन क्राइटेरिया आपका रहेगा कि आपका सप्लायर आपको ढूंढना है और प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए जिसमें आपको डिमांड मिले इंटरनेशनल मार्केट में। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ड्रॉप शिपिंग तो shopify.com is the best website to start your drop shipping business. Shopify, SHOPIFY, shopify.com. स्टिल वी सजेस्ट आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओगे तो वो लॉन्ग टर्म का थिंकिंग होगा, लेकिन अभी के लिए स्टार्ट करना है तो आप शॉपिफाई से स्टार्ट कर सकते हो। देन आप खुद का बिजनेस बना के खुद अपने आप को प्रमोट कीजिए, खुद का एक ऑनलाइन स्टोर बना के। तो दोस्तों ये है ड्रॉप शिपिंग। दोस्तों हो सकता है आपके माइंड में इन बिटवीन बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे इन चीजों के रिगार्डिंग, लेकिन सभी क्वेश्चन का आंसर बीच में दे पाना पॉसिबल नहीं है। आप अपने सारे क्वेश्चन नोट डाउन करके रख सकते हैं और इस सेशन के एंड में हम आपके एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों अगले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं विच इज warehouse renting for importers and exporter. So दोस्तों if you have liquid cash available, आपके पास कैश अवेलेबल है, या तो के आपके पास कोई प्लेस अवेलेबल है जो कि किसी भी बिजी सी पोर्ट के पास है, किसी भी बड़े रेलवे स्टेशन के पास है, या तो किसी बड़ी सिटी के बड़े एयरपोर्ट के पास है जहां पे कार्गो का आना और जाना लगा रहता है, तो वहां पे वेयर हाउस सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस तरह का एक शेड बना के उसमें रेंट पे आप वेयर हाउस प्रोवाइड कर सकते हैं। वेयर हाउस बेसिकली इन्वेस्टमेंट एक बार लगता है, लेकिन इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गारंटीड है, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है उन्हें वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट तो पड़ती ही है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इंपोर्ट का तो जितना ही माल आता है सारा वेयर हाउस में जाता ही जाता है। सो दोस्तों आप ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो वेयर हाउस, एंड आप इसमें रेंट पे प्रोवाइड कर सकते हो। दोस्तों अगला जो हमारा आइडिया आता है विच इज फ्रेट फॉरवर्डिंग फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स। सो दोस्तों फ्रेट फॉरवर्डिंग भी आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। फ्रेट फॉरवर्डिंग अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्रोसेस का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। शिपिंग बाय एयर, बाय रोड, बाय रेल, तीनों का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप लोगों इसमें दोस्तों आपको जो कनेक्शन मेनली रखना रहता है वो लॉजिस्टिक सर्विसेज के साथ रखना होता है, क्योंकि आपको जो भी बायर्स अप्रोच करेंगे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो लॉजिस्टिक के साथ रहेगा। आप उनसे कांटेक्ट करवा के आप उन्हें डील करवा सकते हो। और जनरली लोग जो रहते हैं ज्यादा अवेयर नहीं रहते कि फ्रेट फॉरवर्डिंग क्या होता है और फ्रेट कैसे काउंट करना है। हम भी अपने वेबिनार में देखते हैं तो बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि फ्रेट्स कैसे काउंट करना है। सो दोस्तों मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप कभी भी कोई भी फ्रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगर जैसे कि इनलैंड पोर्ट जो होता है, ड्राई पोर्ट, हर एक सिटी में एक ड्राई पोर्ट होता है, वहां से आप मेन पोर्ट तक का कोई भी फ्रेट अगर चेक करना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है concor.com, CONCOR, www.concor.com। इससे आप किसी भी ड्राई पोर्ट से सी पोर्ट तक का फ्रेट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह की एक वेबसाइट है cogoport.com, www.cogoport.com, cogoport.com। इससे आप अपने पोर्ट से, इंडिया के किसी भी मेन पोर्ट से दुनिया के किसी भी पोर्ट का फ्रेट देख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि कोई भी फ्रेट फॉरवर्डर कभी जिंदगी में आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, लेकिन मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं छुपाना चाहता क्योंकि मैं आपको खुद एक फ्रेट फॉरवर्डर बनाना चाहता हूं अगर आप जुड़ना चाहते हो तो। सो दोस्तों अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग करना चाहते हो या आप किसी भी फ्रेट चेक करना चाहते हो तो कॉनकोर एंड कोगो पोर्ट से आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, which is a custom agent, or we can say custom house agent, or we can say CHA। जो भी पर्सन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है या जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों CHA नाम तो सुना ही होगा। CHA एक ऐसा इंसान है जिसे पूरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेस के बारे में जितने भी आइडियाज मैं बता रहा हूँ
21 आइडियाज, उसमें सबसे ज्यादा अगर नॉलेज किसी को होना चाहिए इस प्रोसेस का, तो वो होना चाहिए कस्टम हाउस एजेंट को. He should be aware about the trade agreement of our country from each and every country. He should be aware about import duties, export incentives, everything. सारी गवर्नमेंट पॉलिसी, हर किसी चीज के बारे में कस्टम हाउस एजेंट को कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. सो अगर आप दोस्तों कस्टम हाउस एजेंट बनना चाहते हो तो आपको गारंटेड बिजनेस मिलने ही वाला है, क्योंकि जितने भी लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपसे कुछ ना कुछ सलाह लेने ही वाले हैं. अगर दोस्तों आप सीएचए बनना चाहते हो तो बेसिक प्रोसीजर क्या रहेगी. सो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले तो 1 से 2 साल किसी सीएचए के अंडर जॉब करना रहेगा. आप जॉब करोगे, उसके बाद आपको सीएचए की एक एग्जाम देनी रहेगी. वो एग्जाम आप दोगे तो आपको एक कार्ड मिलेगा विच इज कॉल्ड जी कार्ड. उस जी कार्ड के बेसिस पे आप एलिजिबल हो जाते हो बहुत से ड्यूटीज पे करने के लिए या बहुत सी सीएचए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. बट तभी 100% आप सीएचए नहीं बन गए. उसके बाद और एक मेन एग्जाम आपको देनी रहती है, वो आप क्लियर कर लेते हो तो आपको कंप्लीट एक सीएचए का लाइसेंस मिल जाता है. एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ सीएचए. सो पूरा नॉलेज लीजिए और देन बाद में मैंने जो आपको प्रोसेस बताई वो फॉलो कीजिए, सीएचए भी बन सकते हो और लाइफ टाइम के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ जुड़ सकते हो एज अ कस्टम हाउस एजेंट. अब दोस्तों जनरली कंट्रीज टॉप 10 दिस टॉप 10 दैट, अगर हम टॉप 10 चीजों की बात करते हैं तो वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है. लेकिन आज हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं. सो और हम आपको और 11 आइडिया बताने वाले कि और आगे आप क्या कर सकते हो इन टॉप 10 के अलावा. कोई टॉप 10 का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी के लिए अच्छा हो सकता है, कोई किसी के लिए अच्छा हो सकता है. तो बढ़ते हैं हमारे 11वें पॉइंट की तरफ विच इज कस्टम वेयर हाउसिंग. आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम बॉन्डेड एरिया, ऑथोराइज पर्सनल ओनली बियॉन्ड दिस पॉइंट. सो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि आप स्टार्ट कर सकते हैं एज अ वेयर हाउसिंग. ये है कि वो दोस्तों कंप्लीटली प्राइवेट वेयर हाउसेज है. और प्राइवेट वेयर हाउसेज में आपको जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनका इतना ज्यादा कोई इश्यू नहीं रहता, यानी इतने ज्यादा आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करने रहते. लेकिन जो कस्टम वेयर हाउसेज रहते हैं वो दोस्तों स्पेशल प्लेस रहता है और ये जो मैनेज किया जाता है वो किया जाता है जो हमारा इंडिया का जो कस्टम ब्यूरो है उसके द्वारा. सो अगर आप एक कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस लेना चाहते हैं सो आपको इंडिया के कस्टम ब्यूरो में रजिस्टर करना पड़ेगा, एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा और तभी आप इस तरह का एक वेयर हाउस स्टार्ट कर सकते हो. इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये क्यों डिफरेंट है. तो बेसिकली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी रहती है उनका 1-2 कंटेनर नहीं आते, उनके 10-10 15-15 कंटेनर एक साथ में आते हैं. एक मान लो शिप रहती है तो उसमें अगर छोटी शिप है तो 800 से 1000 जितने, एक मान लो मीडियम साइज की शिप है तो 800 से 1000 जितने कार्गो रहते हैं और बड़ी शिप है तो 1500 से 2000 जितने कार्गो भी रहते हैं. सो इतने इतने कार्गो एक शिप में आते हैं और एक एक बड़ी बड़ी जो कंपनी रहती है उनके 15-20-25 कार्गो रहते हैं. वो इंपोर्ट हुए तो कस्टम ऑफिसर्स को उन्हें चेक करना पड़ेगा तभी वो क्लियरिंग दे पाएंगे. तो पॉसिबल नहीं है जैसे ही वो ऑन साइट आते हैं और तब के तब वो चेक करके उन्हें क्लियरिंग दे पाए. तो उन्हें इन स्पेशल बॉन्डेड एरिया में शिफ्ट किया जाता है और उनका इंस्पेक्शन किया जाता है जिसमें 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का भी टाइम लग सकता है. तो ये एक स्पेशल वेयर हाउसेस रहते हैं. इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं वो कस्टम हाउस के रहते हैं, लेकिन ये ऑनर जो इसके रहते हैं वो प्राइवेट रहते हैं. तो आपके पास अगर पैसा है, लिक्विड कैश है या कोई प्लेस है बड़ा और आप इसमें लाइसेंसेस ले सकते हो तो आप इसमें भी जा सकते हो. दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ. अगला दोस्तों जो आइडिया है हमारा विच इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट. दोस्तों आप किसी भी तरह की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो. एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आपको नॉलेज है तो मैं जितने भी आइडिया आपको दूंगा उसका एक बेस क्राइटेरिया ये है कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसमें से किसी भी आइडिया में आगे बढ़ सकते हो. विदाउट नॉलेज आप आगे नहीं बढ़ सकते. सो दोस्तों अगर आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना चाहते हो तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो जो फर्स्ट आइकन है, मान लो कोई भी न्यू पर्सन आपके पास आया, वो बोलता है भैया मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंसल्टेंसी चाहिए. तो आप क्या करोगे, आप पहले उसका गोल सेट करोगे कि भैया आपको करना क्या है, एक्सपोर्ट करना है इंपोर्ट करना है. गोल सेट कर दिया, उसके बाद आप उसे नॉलेज प्रोवाइड करोगे, उसके बाद आप उसे अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दोगे. देन नीचे आप आ जाइए तो आप उसे एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उसे सपोर्ट प्रोवाइड करोगे. देन उसे आप पोटेंशियल
जो रहेगा पोटेंशियल मार्केट है उसमें आप उसे बिजनेस करवा के दोगे और उसे सक्सेस अचीव करवा के दोगे। सो डिफरेंट डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग आप कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, अगर आपको पूरा नॉलेज है तो। बट सजेस्टेबल है आप किसी भी तरह की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहो तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। कोई भी थियोरेटिकली आप नॉलेज लेके आप स्टार्ट करो तो वो चीज सही नहीं होगी। पहले आप खुद का एक्सपोर्ट करिए, कुछ ना कुछ चीजें ऑनलाइन सेल करिए, एक्सपोर्ट करिए, और उसके बाद आप लोगों को सिखाइए कि देखो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। उसके बदले में आप उन्हें एक फीस चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे जितनी मैं चीज बता रहा हूँ उसमें आपको एक अच्छी फीस प्रोवाइड होती है। तो कंसल्टेंसी भी आप इस तरह से दोस्तों स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों अगला जो हमारा आइडिया आता है विच इज इन्वेस्टिंग इन एक्सपोर्ट वेंचर्स और वी कैन से एक्सपोर्ट फर्म्स, एक्सपोर्ट कंपनीज। बहुत सी नई नई कंपनी स्टार्ट होती है या ओल्ड कंपनी भी है, लेकिन उन्हें एक्सपोर्ट करना है, लेकिन उनका प्रोडक्शन अभी कम है, उनका प्रोडक्ट ऐसा है उन्हें लगता है कि एक्सपोर्ट में डिमांड मिल जाएगी। आप देखते हो आपको भी लगता है हाँ ये प्रोडक्ट तो एक्सपोर्ट में चल जाएगा, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो इफ यू हैव लिक्विड कैश अवेलेबल यू कैन हेल्प दोज पीपल टू डू सम इन्वेस्ट, क्योंकि हर एक बिजनेस इन्वेस्टर से ऊपर चलता है, इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। सो यू कैन बी एन इन्वेस्टर इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट वेंचर, और आप उसमें इन्वेस्ट करके एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पा सकते हो जितनी भी डील होती है उसके ऊपर। सो आप फार्मर्स के साथ जुड़ सकते हो, मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ सकते हो, कोई भी नए लोग जो करना चाहते हैं लेकिन उनका कोई ट्रेड हिस्ट्री नहीं है, उन्हें कोई बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन आपको अगर उसमें क्लियर प्रॉफिट दिखता है सो आप इसमें भी स्टार्ट कर सकते हो। आप ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हो कि इन्वेस्टर फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आप एक कीवर्ड ये डालोगे सो आपको सामने से लोग अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे कि भैया हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। पर जो कॉल करे उसे इन्वेस्टमेंट दे दे ऐसा नहीं, आप पूरा वेरीफाई करिए और अगर आपको सही लगता है तो आप उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट करना ना भूलें। एक पक्का एग्रीमेंट करें जिसके बेसिस पे किसी भी रिस्क को आप कवर कर पाए, कोई भी अनवांटेड रिस्क में आप ना पड़ जाए। सो यू कैन स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट वेंचर्स। अगला आइडिया दोस्तों जो आता है विच इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंश्योरेंस ब्रोकर। दोस्तों इतनी बड़ी शिप रहती है, इतने बड़े बड़े कंसाइनमेंट जाते हैं, कहीं भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। हम गाड़ी लेके 10 साल निकलते हैं तो उसमें से 2 बार एक्सीडेंट होता है, पर वो 2 बार के एक्सीडेंट के लिए हम 10 के 10 साल इंश्योरेंस तो करवाते हैं। सो इसी तरीके से जितनी बड़ी फर्म्स रहती हैं, कंपनीज रहती हैं, या छोटे फर्म्स भी रहते हैं जो कि 1-2 कंटेनर भी भेजते हैं, तो वो भी अपने कंसाइनमेंट का इंश्योरेंस तो कराते ही हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहें तो भी आप बन सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए ऐसी कंपनीज के कांटेक्ट करना है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो कंपनीज इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है उन्हें आपको कांटेक्ट करना है और बताना है कि मैं आपका एजेंट बनना चाहता हूं, और कमीशन आपका फिक्स कर रहा है आपको कि कितना परसेंटेज कमीशन वो प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आपको ऐसे लोग फाइंड करने हैं जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, या ऐसी फर्म्स फाइंड करनी है ऑनलाइन जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है। आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी उन्हें समझा सकते हो, और आप उन्हें अलग अलग तरह के मरीन इंश्योरेंस और डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस आप प्रोवाइड कर सकते हो। सो इसके लिए आपको डैमेज कवर का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या डैमेजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ लोगों को इंश्योरेंस की जरूरत पड़ सकती है, और किस तरह से आपको कन्विंस करना है लोगों को ताकि आपको अच्छा कमीशन मिल पाए। सो यू कैन स्टार्ट विद दिस फील्ड आल्सो एज अ इंश्योरेंस ब्रोकर। अगले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विच इज अ इंस्पेक्शन सर्विस। सो दोस्तों you can start with a third party inspection services also। दोस्तों हम बहुत से कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि मान लो चाइना से बहुत सी कंट्रीज इंपोर्ट करती है, ये जनरली इशू चाइना में आता है। चाइना एक हब है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वहां से अगर आपको इंपोर्ट करना है तो, लेकिन चाइना में फ्रॉड सेलर्स भी बहुत है कि फेक अकाउंट बना लिया अपना और आपको फोटो अच्छा अच्छा भेजेंगे, डिस्क्रिप्शन अच्छा भेजेंगे, सैंपल भी शायद अच्छा भेज देंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप वो चीज मंगाओगे तब वो चीज में वो क्वालिटी नहीं होगी या वो चीज आपको नहीं डिलीवर होगी जो कि आपको कमिटमेंट दिया गया था। तो वैसी चीज में रिस्क कवर करने के लिए इंटरनेशनल कंपनी क्या करती है, तो उस लोकल कंट्री में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी को हायर करती है। वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी के लोग वहां जाकर इंस्पेक्ट करते हैं प्रोडक्शन से लेके जब तक वो चीज लोड होती है तब तक।
कि जो चीज कमिट की गई है, जिस चीज का एग्रीमेंट हुआ है, वही चीज डिलीवर होनी चाहिए। तो आप जैसे इंडिया में आप जिस भी सिटी में रह रहे हो, लाइक आप मुंबई में रह रहे हो और आपको मान लो कि किसी भी चीज के बारे में नॉलेज है, सपोज आपको ओनियंस के बारे में नॉलेज है या किसी भी तरह की प्रोडक्शन की कोई भी चीज के बारे में नॉलेज है, दुबई में कोई कंपनी है जो कि इंडिया से डायरेक्टली फार्मर से ओनियन इंपोर्ट करना चाहती है ताकि आप उसे बीच में कोई कमीशन ना लगे, सस्ते रेट पे पड़े, लेकिन उसे डाउट यही है कि वो फार्मर सही चीज भेजेगा या नहीं। सो आप एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन बन सकते हो। आप पुणे में या नासिक में जाके आप वेरीफाई कर सकते हो कि भाई आपको जो कमिट किया गया है उसी क्वालिटी का ओनियन कंटेनर में लोड हो रहा है, और उसके बदले में वो जो कंपनी आपको एक चार्ज प्रोवाइड करेगी। बहुत सी कंपनी तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बिना कोई इंटरनेशनल डील करती ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। आप एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कुछ एक गवर्नमेंट के आपको रजिस्ट्रेशन लगेंगे, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक आता है विच इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट डायरेक्टरी। दोस्तों, डायरेक्टरी का मतलब हुआ एक डेटाबेस। डेटाबेस छोटा भी होता है, मीडियम भी होता है, बड़ा भी होता है। Alibaba.com सबने नाम सुना ही होगा। Alibaba इज ऑल्सो अ डायरेक्टरी। वो उनके पास सेलर्स की इंफॉर्मेशन है। क्योंकि उनके पास सेलर की इंफॉर्मेशन है, बायर उनके वेबसाइट को विजिट करते हैं और सेलर बायर मैच ट्रैकिंग करता है। तो मेन पावर क्या है Alibaba का? उसका डेटा। एक्सपोर्टर इंडिया, इंडिया मार्ट, इनका पावर क्या है? इनका अमिताभ बच्चन की एड आती, कॉल ऑन 10 टाइम 8 टू चाहिए, मिल जाती है। व्हाट इज जस्ट डायल? इट्स अ डायरेक्टरी। मान लो चेक करते करते 10 लोग, 15 लोग, 20 बना रहा हूँ, बायर मेरे पास आने लगे, मेरी डायरेक्टरी फेमस हो गई और इन्फॉर्मेशन मेरे पास इतनी हो गई कि 20 की जगह 100 या 500 लोगों का डेटा आ गया मेरे पास। अब वो 500 लोग मुझे पे करेंगे कि मेरा इन्फॉर्मेशन आप पहले दीजिए, तो मैं चार्ज करूंगा। अच्छा, पहला नंबर चाहिए भैया, 1 महीने का 5 लाख रुपए लगेगा। दूसरा चाहिए आपका 3 लाख लगेगा। तीसरा चाहिए इतना लगेगा। सो यू कैन स्टार्ट योर ओन डायरेक्टरी। अगर आपको डायरेक्टरी अपनी स्टार्ट करनी है तो इसके लिए द मेन थिंग विच यू रिक्वायर इज कि आपके पास डेटा का रिसोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास जितना एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का डेटा होगा उतनी आपकी डायरेक्टरी लोगों के लिए यूजफुल होगी। यूजफुल होगी तो लोग विजिट करेंगे, उनके रेफरेंसेस से भी लोग विजिट करेंगे और धीरे धीरे आपकी कंपनी बड़ी कंपनी बनती जाएगी एज एन एडवर्टीजमेंट पोर्टल। सो आप अपनी डायरेक्टरी भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, मार्केटर। सो दोस्तों, लोगों को प्रोडक्शन करना तो आता है। ऐसी बहुत सी कंपनी है, ऐसी बहुत सी फर्म है जिन्हें प्रोडक्शन करना आता है, बट दे आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, बट उनके पास नॉलेज नहीं है और टाइम भी नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर पाए इंटरनेशनल मार्केट में। सो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। अगर आपके पास एसईओ का नॉलेज है, सोशल मीडिया का नॉलेज है, कंटेंट मार्केटिंग का नॉलेज है, पेड एडवर्टाइजमेंट का नॉलेज है, या तो कि आप कुछ प्रोफेशनल हायर कर सकते हो इन चीजों के रिगार्डिंग, और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ऐसे लोगों को अप्रोच कर सकते हो जो कि मार्केटिंग करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। सो आप उनके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेके देन उनके लिए पेड कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो, फ्री कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो, डिजिटली उनको ग्रोथ आप प्रोवाइड कर सकते हो ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बायर मिले। और जितना अच्छा रिजल्ट आप प्रोवाइड करोगे उतना ही सामने वाली कंपनी आपको कमीशन भी प्रोवाइड करेगी। सो धीरे धीरे आप इस तरह से ग्रो कर सकते हो। 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 10 क्लाइंट, 20 क्लाइंट, इस तरीके से आप अपना एक मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। ग्लोबल मार्केट को आप इससे टारगेट कर सकते हो। दोस्तों, अगले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, विच इज लॉजिस्टिक एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आप लॉजिस्टिक एक्सपर्ट भी बन सकते हो। लॉजिस्टिक एक्सपर्ट में आप देख सकते हो इस फोटोग्राफ में, कंटेनर से लेके ट्रक, शिप, जो कि गाड़ियां रहती है जो कि मान लो कि वेयर हाउस में यूज होती हैं, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट लॉरीज, वेयर हाउसेस, प्लेन, ये सारी चीजें में आप डील कर सकते हो। इसमें से एक भी चीज आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। ट्रक से लेके, लॉरी से लेके, वेयर हाउस से लेके,
एनीथिंग, आपको कुछ भी परचेस नहीं करना है, आपको जस्ट इन सारी फील्ड में नॉलेज ले लेना, या तो एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक्सपर्ट बन जाना है। लाइक अगर आप लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना चाहते हो ओनली फॉर ट्रक, सो आपको ट्रांसपोर्टर्स के साथ कॉन्टेक्ट होना चाहिए, और आपके पास ऐसा डेटाबेस होना चाहिए जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, जिन्हें अपने इनलैंड पोर्ट से, अपने वेयर हाउस से इनलैंड पोर्ट पे, या इनलैंड पोर्ट से मेन पोर्ट पे माल पहुंचाने की, या मेन पोर्ट से अपने इनलैंड पोर्ट या अपने वेयर हाउस तक माल पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे किसी भी लोग को आप अप्रोच कर सकते हो, और वो आपको सिंपली बिजनेस प्रोवाइड करेंगे। तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरह की लॉजिस्टिक सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है टू स्टार्ट योर ट्रेड, और आपको इसमें कोई भी चीज बाय करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज वेरी, यू कैन स्टार्ट विद वेरी लो इन्वेस्टमेंट। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। दोस्तों अगला जो हमारा सेक्टर आता है 19 सेक्टर, विच इज मार्केट रिसर्च कंसल्टेंट। अब ये मैंने यहाँ पे एक फोटोग्राफ यूज किया आपके रेफरेंस के लिए, लाइक मार्केट रिसर्च कंसल्टेंट फॉर यूरोप। हम एक विकासशील देश में रहते हैं, जितने भी विकासशील देश हैं, अगर आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपका जो टारगेट है वो एक डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश ही होना चाहिए। सो जैसे कि हमारे यहाँ से बहुत से लोग जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे यूएसए हमारा नंबर 1 ट्रेड पार्टनर है, यूरोप की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। सो यू कैन बी ए स्पेशलिस्ट ऑफ अ कंट्री फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। सो मान लो एग्रीकल्चर में आपने 5 से 10 प्रोडक्ट पकड़ लिए, उसके लिए आपने जो कंट्री को एक्सपोर्ट होता है उनका आपने कंप्लीट रिसर्च कर लिया, वहां की कुछ ना कुछ बायर से आपका कनेक्शन हो गया, और आप एक्सपर्ट बन गए उस प्रोडक्ट के और उस कंट्री के बारे में, और आप अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केट रिसर्चर फॉर यूरोप, फॉर बांग्लादेश, फॉर नेपाल, फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस। सो इस तरह से जो भी लोग आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपको अप्रोच करेंगे आपकी कंसल्टेंसी लेने के लिए। जैसे कि एडवोकेट के पास हम कंसल्टेंसी लेते हैं, उसी तरीके से लोग आपसे कंसल्टेंसी लेंगे कि प्लीज एडवाइज अस, वी वांट टू डू दिस, व्हाट टू डू। सो आप ऐसी चीजों में मार्केट रिसर्च कंसल्टेंट का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली आपको मास्टर बन जाना है, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए, जो भी आप रिसर्च करना चाहते हो उसमें आप मास्टर बन जाते हो। सो इजीली यू कैन स्टार्ट विद दिस। इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना रहेगा कलेक्टिंग द डेटा एंड एनालाइजिंग द डेटा एंड डूइंग द रिसर्च वर्क प्रोफेशनली। अगला दोस्तों जो सेक्टर आता है हमारा, विच इज रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, रोड लॉजिस्टिक्स। सो किसी भी तरह का लॉजिस्टिक इसमें कवर हो जाता है, बट मेनली हमारा इसमें फोकस रहना चाहिए किसी भी तरह के रोड ट्रांसपोर्ट पे, रोड लॉजिस्टिक पे, क्योंकि डोमेस्टिकली हर एक तरह के एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को रिक्वायरमेंट रहती है लॉजिस्टिक की। लॉजिस्टिक मैंने पहले भी कवर किया था, बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं फिक्स इनकम, तो दोस्तों आप स्टार्ट कर सकते हो खुद का लॉजिस्टिक। अगर आपके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, यू कैन बाय सम ट्रक्स। आपने 5 ट्रक, 10 ट्रक, 15 ट्रक खरीद लिए, और आप अपना लॉजिस्टिक स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो भी छोटी कंपनी रहती है, स्मॉल फर्म्स रहती है, वो उनको मान लो आज एक कंटेनर आया, देन 1 महीने बाद एक कंटेनर आएगा, शायद उसके 20 दिन बाद एक कंटेनर आएगा, पहले से कोई फाइनल नहीं है, कब डील होगी तब कंटेनर आएगा या भेजना पड़ेगा। सो उन्हें कभी कभी जरूरत होती है तो वो लॉजिस्टिक एजेंट के पास जाता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी फर्म रहती है, मान लो जैसे कि पतंजलि है, अब पतंजलि को मान लो उसका प्रोडक्ट सपोज एक्सपोर्ट करना है, या कोई भी फर्म है जो इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है और बड़े लेवल पे मास प्रोडक्शन करती है, और हर महीने उसके 50 कंटेनर तो जाते ही जाते हैं पोर्ट पे, तो वो कंट्री कोई लॉजिस्टिक एजेंट फाइंड करने नहीं निकलेगी रोज रोज। वो एक कंपनी एक लॉजिस्टिक एजेंट हायर करेगी, वो खुद के ट्रक भी नहीं लेगी, वो आपकी तरह एक एजेंट हायर करेगी, आपको हायर करेगी, लॉजिस्टिक ओनर को हायर करेगी, और उनके 15 ट्रक है वो अपनी कंपनी पे लगा लेगी। आपको फिक्स जो आपका ट्रक का रेंट रहता है वो हर महीने कंपनी प्रोवाइड करेगी। सो इस तरीके से आपको एक फिक्स इनकम रह सकती है। आप एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि मान लो अगर आपके पास, आप स्टार्टिंग में एक ट्रक बाय करो, देन 2 4 5 10, तो बेसिकली आपको पता रहेगा कि एक ट्रक में इतने में ले रहा हूँ, इतना इसका ईएमआई जाएगा, इतना इसका इंश्योरेंस और इतना एक्सपेंस रहेगा, इन रिटर्न इस कंपनी से मुझे इतना बेनिफिट मिल सकता है, हर महीने इतना अमाउंट मिलेगा। सो आप ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। इट इज अ वेरी नाइस फील्ड इफ यू वांट टू स्टार्ट विद इट, एंड इफ यू हैव सम लिक्विड कैश अवेलेबल विद यू, और यू कैन टेक लोन एंड यू कैन मैनेज, if you can manage these things, so you can do this. अब दोस्तों अगले और
आज के लिए जो हमारा लास्ट आइडिया है उसकी तरफ बढ़ते हैं, विच इज 21st आइडिया, विच इज सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। दोस्तों नीचे आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो सारी कंडीशंस है। अगर आपको सर्विस एक्सपोर्ट करना है तो ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी वो एक सर्विस एक्सपोर्ट कहा जाएगा। पहली जो कंडीशन है विच इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। सो जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो एक सर्विस होनी चाहिए तभी वो सर्विस एक्सपोर्ट होगा। दूसरी कंडीशन, सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया। सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, आप सर्विस प्रोवाइडर आप इंडिया में होने चाहिए। रिसिपिएंट शुड बी आउटसाइड इंडिया, जो रिसीव कर रहा है सर्विस वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तो सर्विस होनी चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर आप इंडिया में होने चाहिए और जिसे सर्विस प्रोवाइड करे वो आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए। फोर्थ, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। सो बेसिकली सर्विस अगर जो ले रहा है वो आउटसाइड इंडिया है तो सर्विस प्रोवाइड भी आप आउटसाइड इंडिया ही करोगे। एंड द फिफ्थ कंडीशन इज पेमेंट रिसीव्ड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस इज कन्वर्टिबल इन फॉरेन एक्सचेंज। सो जो भी अमाउंट आता है वो ऐसा नहीं कि आपने अमेरिका में सर्विस प्रोवाइड कर दी, ठीक है, आपने यूएसए में सर्विस तो प्रोवाइड कर दी, आप रहते हो मुंबई में और पेमेंट जो आया वो आपको अहमदाबाद के अकाउंट से मिला, तो भी वो सर्विस आप काउंट नहीं करवा सकते, एक्सपोर्ट आप सर्विस एक्सपोर्ट काउंट नहीं करवा सकते क्योंकि पेमेंट आपको डोमेस्टिकली मिला है तो उस पर मिलने वाले बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। सो अगर आपको सर्विस एक्सपोर्ट का बेनिफिट लेना है तो ये पांचों कंडीशन आपकी होनी चाहिए। आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप इंडिया में हो, आपका बायर फॉरेन कंट्री में है, आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो भी फॉरेन कंट्री में कर रहे हो, और जो आपके अकाउंट डॉलर से या दिराम से किसी भी अमाउंट में कन्वर्ट होके आएगा, सो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू कन्वर्ट होके आपके अकाउंट में आना चाहिए, वही एक सर्विस प्रोवाइडिंग हुआ। मैंने भी अपने करियर की स्टार्टिंग में एक कंपनी में काम किया हुआ है। जैसे कि मेरा जो काम रहता था, हमारी जो फर्म थी उसका काम क्या रहता था बेसिकली, सो यूएसए में जो अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, अवीवा यहाँ भी है, आई वाज वर्किंग फॉर अवीवा यूएसए। सो वहां पे अवीवा को कोई भी क्लाइंट अगर अप्रोच करता था मेडिक्लेम इंश्योरेंस के लिए, तो मेडिक्लेम प्रोवाइड करने के लिए उन्हें उस पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड देखने रहते थे कि अगर ये मान लो 35 साल की या 40 साल की इनकी एज है तो पिछले 10 20 15 50 सालों में ये बीमार पड़े हैं या नहीं, इनकी पूरी लाइफ में बीमार पड़े हैं या नहीं। सो उसके लिए उन्हें उस पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए होते थे। अब यूएसए में जो मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं पेशेंट के, वो जो इंश्योरेंस कंपनी वो डॉक्टर से लेती है, पेशेंट से नहीं लेती। तो वो जो प्रोसेस रहती है उसके लिए डॉक्टर ऑफिस को मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को एक एप्लीकेशन देना रहता है और उसके बदले में वो मेडिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो प्रोसेस रहती है थोड़ी सी लेंथी रहती है, उसके लिए अवीवा ने इंडिया में हमारी फर्म को हायर किया हुआ था। तो हमारा काम ये रहता था कि अवीवा हमें बोलती थी कि ये क्लाइंट आए हैं हमारे पास फॉर मेडिक्लेम, तो आप इनके मेडिकल रिकॉर्ड मंगा के दीजिए, ये रही डिटेल डॉक्टर ऑफिस की। हमें अप्रोच करना रहता था डॉक्टर ऑफिस को और हम उनसे मेडिकल रिकॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट करते थे। कुछ ऑफिस फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल रिकॉर्ड भेज देते थे, कुछ जो ऑफिस रहते थे डॉक्टर ऑफिस वो हमें चार्ज करते थे, तो 5 10 15 20 डॉलर जो भी उनका चार्ज रहता था वो बाय कार्ड हम ऑनलाइन पे करते थे और देन बाद में वो हमें रिकॉर्ड फैक्स करते थे, मेल नहीं फैक्स करते थे। सो इस तरह से वो भी एक सर्विस एक्सपोर्ट था। सो इस ये तो मैंने आपको एक प्रोसेस बताई। उसके अलावा भी आईटी के रिलेटेड भी बहुत सी चीजें हैं जो कि इंडिया प्रोवाइड करता है। आईटी सेक्टर ज्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट के ऊपर ही चलता है, तो वो भी एक तरह का सर्विस एक्सपोर्ट है। आपको अगर आईटी का नॉलेज है आप डिफरेंट आईटी सर्विसेज फॉरेन क्लाइंट में प्रोवाइड कर सकते हो, या आप आईटी प्रोफेशनल हायर करके आपका क्लाइंट रहेगा ओनली बायर लाना और काम इनसे अपनी टीम से करवा के आप उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी सर्विसेज को। सो सर्विस एक्सपोर्ट भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो। दोस्तों ये मैंने आपसे बात की 21 आइडियाज के बारे में। दोस्तों हमने अभी तक कवर किया कि क्या हमारा बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का स्कोप है और ओवरऑल हिस्ट्री क्या रही है और इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। फ्यूचर भी अगर आप मान लो जाना चाहते हो तो क्या क्या सेक्टर है जिसमें आप जाना चाहते हो। अब आ जाते हैं दोस्तों मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। जो आज के टाइम पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एम लिया हुआ है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। सो हम इंडिया में इस तरह का उत्पादन करना चाहते हैं
कि हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें। दोस्तों 15 अगस्त का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी का जो स्पीच था लाल किले से, उस पे मोदी जी ने बताया था, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये एक हेडलाइन है 21 अगस्त के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, इन हिज इंडिपेंडेंस स्पीच पीएम नरेंद्र मोदी repositioned the Make in India agenda as Make in India for the world. This signifies India's aspiration to be a powerful trading nation on the back of quality products, competitive manufacturing, and integration into the world economy. कहने का मतलब ये है, मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि भारत एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा जो सबसे अच्छी क्वालिटी की चीजों का उत्पादन भारत में करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा, जिससे भारत पूरे विश्व में एक मजबूत व्यापारी देश के रूप में उभरेगा। तो दोस्तों आज की जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ है, और बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमारी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। आज का दोस्तों हमारा जो सेशन था उसका टॉपिक था कि सेशन है उसका टॉपिक है कि क्यों एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक नेक्स्ट डेकेड के लिए बिजनेस है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को एक डेकेड से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही इंसल्ट हो जाएगी इस सेक्टर की, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये बिजनेस हजारों सालों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। और हम लकी हैं कि आज हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी है कि जिसका एम ही है इसे बढ़ाना। तो मैंने आपको जितने भी सेक्टर्स बताए उन सभी सेक्टर में आप अपना ध्यान लेकर जा सकते हो आगे। दोस्तों मोदी जी तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं वो है डायरेक्टर ऑफ इम्प एक्सपर्ट मिस्टर वैभव शर्मा। उन्होंने एक ऐसा फर्म स्टार्ट किया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग, जो कि आज तक 10,000 12,000 से भी ज्यादा बिजनेस ओनर को ट्रेन कर चुका है, जो कि डिस्क्रिप्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया, डिटेल बताई। और ये एशियन अफ्रीकन चैम्बर की तरफ से भी अवार्ड मिला है इम्प एक्सपर्ट को इन ईयर 2020। IMP experts delegation meeting Chief Minister of Gujarat. We are working with CD government of Gujarat to promote trade. So government का भी अच्छा support available है IMP experts के साथ। ये सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया इंडियन ग्लोरी बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी IMP एक्सपर्ट को जगह मिली है एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल चैम्बर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो इस फील्ड में तो IMP एक्सपर्ट क्या हेल्प कर सकता है। अगर आप चाहते हो खुद के एंड से आप नॉलेज लेके आगे बढ़ सकते हो किसी भी सेक्टर के लिए तो आप बढ़ सकते हो। बाकी जो मैंने आपको बताया, जितनी भी आपको मैंने चीजें बताई उसमें आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए, एक चीज मस्ट है। और नॉलेज आता है तभी जब कोई आपको आप किसी के सामने बैठ के सारी चीजें सीखते हो। जैसे कि मैंने आपको कुछ चीजें बताई, आपने आराम से बैठ के सुना समझा तो आपको बहुत सी चीजें पता चली होगी नई नई। सो इसी तरीके से अगर आप पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस जानना चाहते हो और मैंने बताया उनमें से किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको एक बेसिक ट्रेनिंग तो लेनी ही चाहिए। अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ और ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप एक्सपोर्ट में जुड़ना चाहते हो तो ट्रेनिंग के साथ आप जुड़ सकते हो। इसकी फीस है 15,000 रुपये। अगर आप पूरा सेटअप चाहते हो कि हम आपको करके दें तो उसकी फीस है 30,000 रुपीज। उसी तरीके से ई कॉमर्स अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डोमेस्टिक की फीस है 15,000। इंटरनेशनल अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसकी फीस है 25,000। आज के लिए दोस्तों ऑफर ये है कि जितने भी लोगों ने आज ये वेबिनार अटेंड किया है उसमें से पहले 20 क्लाइंट जो भी नेक्स्ट 48 ईयर्स में पहले 20 क्लाइंट जो भी बुक करते हैं उन्हें फ्लैट 10,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा। सो एक्सपोर्ट में अगर आप जाना चाहते हो तो टोटल फीस इज 45,000, फ्लैट 10,000 डिस्काउंट करके यू विल गेट इट इन 35,000। ई कॉमर्स अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो टोटल फीस इज 40,000, 10,000 डिस्काउंट करके यू विल गेट इट इन 30,000। दोस्तों अगेन अगर हम हमारे पाषाण युग में चले जाएं तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे जैसे कि ये एक आदि मानव है जो कि नॉलेजेबल है और वो उसके जमाने के लोगों को बोल रहा है कि आप आपका जो टायर है वो देखिए, जो गाड़ी वो खींच रहे हैं वो उनका जो टायर है वो स्क्वायर है। वो
उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ सकते, शायद ये जो उनका कार्ट है वो भी टूट जाएगा आगे जाकर। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप ट्रेनिंग ले लीजिए, पॉलिशिंग करवा लीजिए, बट वो बोल रहे नहीं, वी आर टू बिजी फॉर इम्प्रूवमेंट। सो दोस्तों ऐसा हमें नहीं बनना है। जहां भी हमें ट्रेनिंग या पॉलिशिंग मिल सकती हो, अपने स्किल को डेवलप करने का मौका मिल सकता हो, वहां हमें डेवलप होना चाहिए, अपने आप को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उतने ही ज्यादा मास्टर आप कहलाओगे आज के वर्ल्ड में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इफ यू वांट टू ग्रो इन 21st सेंचुरी, you should be able to learn, unlearn and relearn new things again and again। दोस्तों आपको और आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर पे आप फोटो भी ले सकते हैं। इस स्क्रीन का नंबर है 7303510511। आई रिपीट 7303510511। आप लॉगिन भी कर सकते हो www.impexperts.com की वेबसाइट पे। Or you can also download the GFE app, Global Federation of Entrepreneur। You can go on the Play Store and download this app। You will get regular updates about export import and our upcoming sessions on this application। So दोस्तों thank you so much। आज का जो हमारा डिस्कशन था, मुझे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं आशा रखता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए ओपन करते हैं आज का सेशन। सो मिस्टर मानव कतुरिया या मिस्टर मानव, अनम्यूट योरसेल्फ। मानव जी आपका रेज्ड हैंड है, सो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। Host, please unmute the participants। I am unable to unmute। Yeah, Mr. Mohammed, please ask your question। सर मैं क्लास में आने में थोड़ा लेट हो गया था, तो जो टॉप 10 बिजनेस जो हैं आप वो उनके टॉपिक एक बार रिपीट कर सकते हैं? या मोहम्मद जी, ऐसा है कि यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, यूट्यूब एंड फेसबुक पे रिकॉर्डेड आपको लिंक मिलेगा, अगर आप अगेन अटेंड कर सकते हैं। और उसमें फिर कुछ भी क्वेरी रहती है आपको तो आप जो मेरा नंबर होता है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। सर एक बात और, ये जैसे कि अब यहाँ से हमको लॉजिस्टिक के लिए चाहिए है एक्सपोर्ट से, जो अपने यहाँ जैसे भोपाल में जैसे कंटेनर्स आते हैं, अब वो रिटर्न होते हैं आईसीडी के लिए। तो सर उसको मतलब गवर्नमेंट खाली यहाँ से जब भेजाती है तो कम पैसों में लॉजिस्टिक उसका लगता है, तो उस कंटेनर तक कैसे रीच कर सकते हैं अपन? आज देखिए जो हमारा सेशन था वो 21 अपॉर्चुनिटीज के ऊपर था। अगर आपके सेशन के रिगार्डिंग आपके मन में कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। स्पेशली लॉजिस्टिक में जाके अगर आपका कोई डाउट है तो उसके लिए आपको किसी लॉजिस्टिक एक्सपर्ट को कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? या आप हमारे कस्टमर केयर में कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको एक लॉजिस्टिक एक्सपर्ट से कांटेक्ट करवा देंगे। क्योंकि मैंने 21 डिफरेंट सेक्टर के बारे में बात की, लॉजिस्टिक के अंदर जाके वो कंसाइनमेंट का वो मैं आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसके लिए लॉजिस्टिक एक्सपर्ट ही आपको आंसर दे पाएंगे। आज के सेशन के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है? Yeah, Mr. Rajesh। Yes, yes. Yeah, Actually, Mr. I am a merchant exporter, dealing with the different products. Now, my question is like, last 1.5 year, I
now due to COVID and other reasons, Okay. I could not able to find out the buyers. So Okay. I can have the data of buyers data, but I need the support like on the buyers data and as well as the active buyers data and how to crack the deal. The main concentration of from my end is cracking the deal. How helpful for me Yep. because I have the IAC, GST website and a rush of all the things. So you got my point, right? I have the setup. Just I Yep. want to crack the deals. So have you done any deal before? Have you done any trade No, before? no, sir. Okay. So what is the product of yours? It's a turmeric and the activated carbon, shell charcoal, and coconut related byproducts. All Coir these brick and products are having cocoa butter. very all these products are having very interesting demand. Yes. Okay. And in turmeric, actually, in my last webinar, I covered that turmeric is a spice in which you will definitely get buyers if you are Right. having turmeric, and in coconut also the same thing applies. So first of all, you should be able to put up all the things digitally in very nice manner. So you should have a nice website, and then there are various B2B portals, like you can go on Exporters India, you can find the importers detail over there, or you can buy some data. That is the most easy and efficient way, cost saving way, that you can buy some data from a CHA or from any kind of export import agent. You can contact our company also, we will provide you some data. And then you should prepare a complete mail format in which the you will giving complete details about your product, your company description and everything, and you can share to them. It is possible that you will not get the reply in your first mail, but you should be doing the mail in every 2 days, 3 days. You need to approach them multiple times. You will surely get a reply, and then you can start talking with them, like if as per their requirement you can deliver the goods, so you can start the deal. Actually, sir, I'm a IT technical lead, so my English is good on that. So That's really writing, great. yeah, I'm So writing that's a very easy for you to do yes, SEO and everything. yeah. Last 1 year, I set up in a good formal way, communicated Do in one mails, thing. emails. I'm still Okay, writing then it. if you're IT expert, do one thing. Whatever country you are targeting, first of all, get to know about in which country you are having demand about your products. Okay, and UAE, sir. then It's UAE and it's US. UAE. USA. Then okay, then in UAE and USA, search out which are the top 10 B2B portals. So like if you search for turmeric supplier or buyers, so which portals are coming there in top 10, you need to register yourself there, and plus Okay. buy the data. So you need to approach the buyer online also, and from the data you can approach them. Another way is, we can say it offline data, but the approach will be online itself. Okay. And Other you than can that, connect with any us. We actually provide trainings in which yeah, because in market it is not something which I can tell you in 2 or 4 minutes. There are complete yes, sir. 4 hour session on marketing. Today we Okay. covered many things in just 1.5 hour, and there are a complete 4 hour session on just marketing and finding buyer. So I cannot share the complete information Okay. in Fine. just 2 minutes, but I can give Understand. you Understand, sir. a glimpse of it. Yeah. Yeah. Okay, Mr. Sure. Rajesh. Let me know, Thank sir. you. Yes. How can I Yep. connect on that for the further things Yes, you and can for contact the to that marketing? number which I shared, or you can visit our website and raise an inquiry, and you will get a call. Okay. Sure, sir. Thanks a Okay. lot. Thank you. Yeah, Mr. Utkarsh Gupta. I would like to know about the opportunities in agricultural and artifact sector. Agriculture and Artifacts, like from uh, Western UP. And I also own land in UP, so I want to know about what I can grow and use that also. India is a country in where we are having many kind of crops, and agriculture is our main thing which we are exporting today also.
agriculture, like we are exporting different kind of agriculture products. So there is always a scope in agriculture. And if you are having supplies and your product is of export quality, so definitely you can approach the buyers. You should visit a lab, do a lab test of your product. Okay, you will get a report and try to find buyers like the way I explained, or you can connect with us. We will show you how to connect with international buyers. Then you will talk with your buyers. They will ask for the report of your product, like what nutrition value, what the like ingredients your product is having, what vitamins your product is having. So if it is as per their requirement, you will get the deal. Only the thing is required, you should have the complete knowledge first, and your product should be of export quality. You should have a good product. Simple. And how do I find an See, edge? how do you find an edge? Can you elaborate what you mean by edge? So I see many exporters. So how do I find an edge so that my product stands Yes, out more? there is competition in everything. अगर आप कपड़े के मार्केट में जाते हो तो वहां पे हजारों दुकानें होती है और सब लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कोई मान लो अलग से जाके रेगिस्तान में कपड़े की दुकान कर लो। तो ओवरऑल कंपटीशन तो हर एक फील्ड में है। मोनोपोली तो आज के टाइम पे बची ही नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। लेकिन जो बिजनेस है ना, 1 बिलियन को अगर मैंने आपको जैसे कि बताया 72,000 करोड़ यानी 1 बिलियन 324 बिलियन का एक्सपोर्ट है। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो वो भी फेल हो जाएगा, फिगर नहीं बता पाएगा। तो हमको पूरा बिजनेस तो टेक ओवर नहीं कर लेना है, हमको तो उसमें से चीटी जितना भी मान लो साल का अगर 50 लाख 1 करोड़ का भी बिजनेस मिल जाएगा तो भी आपके लिए तो बहुत है, स्टार्टिंग के लिए बहुत है। तो अगर एक्सपोर्टर है तो बायर भी बहुत है, क्योंकि यहाँ हम बात करें पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया आपके पास खुली हुई है। तो इसीलिए तो मैंने आपको इतने सेक्टर्स बताए कि इस मेंटालिटी से बाहर निकलो कि मैं कंटेनर भर के भेजूंगा तभी मेरा होगा। बहुत सी चीजें आप कंटेनर भर के भी भेजो तो भी बायर की कमी नहीं है। उसके अलावा बहुत से डिफरेंट सेक्टर्स है। मैं जानता हूँ आज हम थोड़ा सा फास्ट गए हैं, लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी यूट्यूब पे जाकर रिपीट भी ये सेशन थोड़ा देख सकते हैं। आपको जो चीज इंटरेस्टिंग लगी हो उसके बारे में आप जाके जो मैंने बताया वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप और आगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर उत्कर्ष, मेरा आपको यही सजेशन है कि आप इन्फॉर्मेशन। And if I connect with you, so you will provide support also. Yeah, definitely. Our main work is to provide support who are willing to start a new business in exporting food. So definitely, that's why we are providing training. That's why we are providing setup services. So you can definitely get connected to us and we will help you. Great. Okay. Okay, Mr. Utkarsh. Nice to talk with you. Bye. Yeah, Mr. Rajesh, please unmute yourself. Yes, sir. Just one question, sir. Regarding the EPIDA or something registrations, if you go for, is it for 1 year it will be there, or otherwise how many years it will be there for validity? EPIDA or export council registrations. Different. There are total 32 to 37 type of RCMCs. APEDA is one of them. APEDA, you need to register there once and then need to renew it in every different certification of different timings. Like APEDA, I guess 2 to 3 years you need to renew it. You need to renew every RCMC as per that time. You can go on the website and check the detail about that particular certificate. Like if you want to export spice, you need to register in Spice Board. If you want to register coconut, you need to register in Coconut Board. For tea board, for coffee board, for every like certification are different. So you can go on that particular website and check. You will get the complete information. Sir, if I go for a FIFO other than this, is there any problem will be there, or otherwise it won't be any problem? FIFO, No, FIO. Yeah, FIO. FIO, right? FIO. Yes, so, yes, correct. Like so if you are willing to export multi-product, if your product is not based on a single category, then you definitely need to register in FIO, because you cannot go for like a special certification for everything.
And if you are clear about it that you just want to export agriculture only, then you should simply register in APEDA. But if you think you will export multiple product, belong to multiple category, then you should register in FIU. Okay, sir. Yeah. So last question, Okay. sir. Yeah. But they will provide any if I go for the registration, they will provide any buyer's data also with us. Yes, definitely. If you ask for the buyer's data, they will provide you the buyer's data as per your goods or as per your requirement. Okay. Fine, sir. Thanks a lot, sir. Thanks for your solution. Yep. Thank you. Bye. So friends, I cannot see any raised hand currently in front of me. Do you guys have any kind of questions? Or should we conclude for this day? Okay then. So I guess we have answered all the questions. So friends, मुझे लगता है आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, इंटरेस्टिंग रहा होगा. मुझे भी मजा आया सेमिनार आज के ये वेबिनार लेने में, और आपको भी मजा आया होगा ये वेबिनार अटेंड करने में. सो आज का हम वेबिनार यही कंक्लूड करते हैं. गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद.